Okay. Today's topic, we are conducting our fourth class, but it is the third lecture that I'm giving in this series. It is based on the liquid fuels. We are still on our CLO1. हम बात कर रहे थे, हमने बात कर ली कि फ्यूल क्या होता है. What is a fuel? The basic definition I told you. Then I even told you that there are three major types of fuel: solid fuels, liquid fuels, and gaseous fuels. Solid fuels are done and dusted. We've discussed them in detail, and coal is the most important solid fuel. अब बात करते हैं लिक्विड फ्यूल की. लिक्विड फ्यूल और गैस फ्यूल थोड़े से आपस में रिलेटेड हैं क्योंकि दोनों का फॉर्मेशन सेम तरीके से होता है. इस लेक्चर में आई हैव फोकस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड फ्यूल विच इज ऑल्सो नोन एज पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज द जनरल ब्रॉड टर्म. उसके बाद जो आपकी गैस होती है वो उसी तरह से बनती है जिस तरह से पेट्रोलियम बनेगी. मगर तो हम जब गैस की बात करेंगे और गैस की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो दोबारा वही प्रोसीजर होगा, तो एक तरह से एक रीकैप हो जाएगा. सो आई विल डू इट अ सेकेंड टाइम विद द गैस प्रोडक्शन, बिकॉज इन द क्वेश्चन आई कैन आस्क यू दैट टेल मी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैस, or I can ask you, tell me about the formation of petroleum. So it depends upon the condition I am asking you. Objectives. What I expect you to know by the end of this lecture. At the end of this lecture, a student is expected to know steps of petroleum formation. जब आप पेट्रोलियम को फॉर्म कर रहे हो लिक्विड फ्यूल के अंदर, तो उसमें कौन से स्टेप्स होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है. The way we talked about coal, that the first point was lignite formation, not lignite formation, peat se vegetable matter was dying. It ended up right at the end under several years of deposition under with high temperature and pressure. इसी तरह जब आप पेट्रोलियम की बात करेंगे तो पेट्रोलियम की भी कोई कंडीशंस होंगी, कोई स्टेप्स होंगे. And petroleum is a liquid fuel. Number 2, terms associated with the formation of petroleum. ये टर्म्स गौर से सुनिएगा, इनको बाद में गूगल आउट कीजिएगा. हो सकता है मैं कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ लूं. आई हैव नॉट मेंशन्ड देम इन स्लाइड. Something you have to do on your own, but the names are mentioned and I will even tell you what they are in one line or two. But if I give you a question, discuss the following terms found in petroleum exploration. For example, source rock, reservoir rock, migration, anticline. These are 4 different terms. I have mentioned all of them in this slide. So you should know the terms which you are going to get in petroleum. Then we classify liquid fuels. The way we classified solid fuels, we have to classify liquid fuels also. Refining of petroleum and the main processes in the petroleum industry. I will just give you a broad overview of what happens in a petroleum refinery, but the major part of this course will be followed under the course petroleum refinery engineering. Basic tests on liquid fuels. I will tell you the names of your liquid fuels, and these tests you're going to conduct in your practical of fuel and energy. I don't know if you've ever heard of the smoke point, flame point, fire point, but these are tests that are important in the petroleum industry and you must know them. So these will be discussed by whoever conducts your labs. Advantages of liquid fuel, especially in comparison to solid fuels. Why liquid fuels are preferred over solid fuels. So keeping these objectives in mind, या based on these objectives, हम एक step आगे करते हैं, liquid fuels की हम बात करते हैं. देखें, जो आपका word petroleum होता है ना, उस पे आते हैं. Petroleum is also known as crude oil. Last class में मेरे साथ पता नहीं डिस्कशन हो रही थी, स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि क्रूड ऑयल डिफरेंट है, पेट्रोलियम डिफरेंट है. पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल डिफरेंट नहीं है, वो सेम चीज है. अगर आप हमारा डिस्कशन वाला चैनल देखें, वेयर आई वांट ऑल डिस्कशंस टू टेक प्लेस, आप देखेंगे कि उधर एक बहुत बड़ी एक आर्ग्यूमेंट चल रही थी. इन द एंड कंक्लूड यही हुआ कि पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल. इट इज नेचुरली अकरिंग ब्राउन टू ब्लैक कलर्ड विस्कस ऑयल. इसके अंदर देखें 2 या 3 चीजें हैं. कई किताबें आपको बोलेंगी येलो टू ब्लैक, कई किताबें आपको बोलेंगी ब्राउन टू ब्लैक.
दोनों सही हैं। दोनों इसलिए सही हैं क्योंकि जो पेट्रोलियम का जो ये जो कलर है पेट्रोलियम का, ये किस चीज पे डिपेंडेंट है? आपको क्या लगता है किस चीज पे कलर डिपेंडेंट होगा? जी, एनीवन? नंबर ऑफ कार्बन पे। सर कार्बन नंबर ऑफ कंटेंट पे। कार्बन पे। कार्बन आपका इफेक्ट करेगी कलर के ऊपर। जिस तरह कोल के अंदर ये था ना कि कार्बन कंटेंट जितनी ज्यादा थी उतना कलर आपका ब्लैक हो रहा था, इसी तरह आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उसके ऊपर भी कलर डिपेंड करेगा। सबसे कॉमन एग्जांपल देख लें आप अपनी गाड़ियों के अंदर, जब गैसोलीन डालते हैं, अमेरिका में गैसोलीन बोला जाता है, यहाँ पर उसको पेट्रोल बोलते हैं। गैसोलीन जब आप डालते हैं तो उसका कलर क्या होता है? येलोइश ग्रीन होती है, मगर ये है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये। इसी तरह कोई बहुत ज्यादा मशीनरी ऑयल हो, आपने कोई ऑयल करनी है कोई चीज को, या जिन लोगों ने इंडस्ट्री में प्लांट्स देखे उधर कहीं ऑयलिंग करनी है मशीनरी को, तो हम एक गाढ़ा ब्लैक रंग का ऑयल डालते हैं जिसको फ्यूल ऑयल डालते हैं, लुब्रिकेशन के लिए ऑयल यूज करते हैं, उसका कलर ब्लैक होता है क्योंकि वो एक हेवियर कंपोनेंट है। और जाहिर सी बात है हेवियर कंपोनेंट होगा तो उसका कलर भी ब्लैक होगा और उसका वेट भी आपका ज़्यादा होगा, वो फ्रैक्शन बाद में मिलेगा, और साइड बाय साइड उसके अंदर इम्प्योरिटी भी ज़्यादा होगी। जब हम पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं वो एक क्रूड ऑयल है, तो ये कंफ्यूज नहीं करें कि पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल इज डिफरेंट, दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड थिंग इज यू डू नॉट हैव टू कंफ्यूज कि आप ये बोलें कि क्रूड ऑयल है वो गैसोलीन है, वो केरोसिन है, दैट इज नॉट ट्रू। क्रूड ऑयल जो है वो एक जनरल टर्म है जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं, और इस क्रूड ऑयल को हम ब्रेक करेंगे अपने काम की चीजों में, यानी वी ब्रेक द क्रूड ऑयल इनटू द कंपोनेंट्स वी वांट। These components can be heavy components such as bitumen, fuel oil, lubricating oil, kerosene, or it can be lighter components, diesel, डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है। एंड वन जनरल रूल ऑफ द थंब, जितना आपका कंपोनेंट स्मॉलर हो उतना ज़्यादा वो यूजफुल होता है। गैसोलीन और डीजल के यूजेस ज़्यादा हैं कंपेयर टू फ्यूल ऑयल, इसीलिए प्रेफरेंस आपको छोटे कंपोनेंट को ही दिया जाता है, कोशिश ये की जाती है। दैट इज वाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल्स दैट आर बीइंग यूज्ड दीज डेज, not fuel, the components that are bringing the increase in economy are diesel and petrol। यहां तक बात क्लियर है? अब ये डीजल और पेट्रोल किस तरह आता है ये आप फर्दर पढ़ेंगे पेट्रोलियम रिफाइनरी में, मगर मैं आपको यहाँ पर एक स्टेप बता दूंगा अभी थोड़ी देर में कि आपने करना क्या है, और उसका नाम ही आपको बता देगा कि ये किस तरह आया है। चलें, पेट्रोलियम जो होता है ना, दैट इज फॉर्म्ड अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी ये अर्थ के नीचे डिपॉजिट होता है, अर्थ के क्रस्ट के नीचे। जियोलॉजी, अब हम जियोलॉजी में आ जाएंगे अगर हम अर्थ के ऊपर जाएं, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन यू शुड नो इट इज जस्ट फाउंड बीनीथ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। पेट्रोलियम कैन बी फाउंड बोथ ऑन शोर एंड ऑफ शोर। अब पेट्रोलियम जब बात करते हैं तो दो जगह आपको मिल सकता है। ऑन शोर का मतलब जहां पर वो लोकेटेड है लैंड के ऊपर, ऑफ शोर का मतलब है वो पानी के ऊपर लोकेटेड है, अवे फ्रॉम लैंड। Chemically, it is a mixture of various hydrocarbons with small amounts of nitrogen, oxygen, sulfur. General terms के अंदर approximate composition कार्बन होती है 80 to 84% कोई पेट्रोलियम कंपाउंड में। हाइड्रोजन जो होती है वो 10 to 14% होती है, therefore they are mostly hydrocarbons. सल्फर कंपोनेंट होती है 0.1 to 0.5%, और इस सल्फर को हमें रिमूव करना होता है बिकॉज इट इज टॉक्सिक फॉर आवर products, it is toxic for our industry, it is toxic for us in general. और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो पेट्रोलियम में होती है दैट इज ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, बाकी जो बचा हार्डली एनी वैल्यू है उसकी। अच्छा, वैसे पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड। आजकल पेट्रोलियम की वैल्यू गिर रही है क्योंकि ये अब एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया है और ये डिप्लीट कर रहा है, मगर एक ज़माने में इसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता था बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती थी, और इंडस्ट्रीज ने नियरली बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ अमाउंट सिर्फ इस चीज़ से बनाया है, एंड पीपल हैव बिकम रिच बेस्ड ऑन पेट्रोलियम। Petroleum, crude oil and gas are interchanged at times. They all are the same thing. कभी आपको वर्ड मिलेगा पेट्रोलियम, कभी आपको वर्ड मिलेगा क्रूड ऑयल।
कभी आपको वर्ड मिलेगा ऑयल एंड गैस। अगर आप ऑयल एंड गैस दोनों एक ही लाइन के अंदर है, ऑयल एंड गैस, तो समझ जाएं हम पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं। अगर सिर्फ गैस हो तो गैसियस फ्यूल्स, ऑयल हो तो लिक्विड फ्यूल्स। ऑयल की जब आप बात करेंगे तो ये पेट्रोलियम के अंदर आ जाएगा। मगर जब आप इन तीनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इनका मतलब वही है। पेट्रोलियम जो बना था वो दो वर्ड से बना था। एक होता है पेट्रा, जिसका मीनिंग होता है रॉक, पत्थर। दूसरा होता है ओलियम, ओलियम का मतलब होता है ऑयल। सो इन अदर वर्ड्स पेट्रोलियम इज रॉक ऑयल। इन सिंपलर वर्ड्स द पेट्रोलियम विच इज फाउंड इन अ रॉक। रॉक के अंदर आपको पेट्रोलियम मिलता है। इसीलिए आप दो चीजें बोलते हैं जिसका अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, सोर्स रॉक एंड रिजर्वॉयर रॉक। इन टर्मिनोलॉजीज की हम बात करेंगे, मगर मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब आप ऑयल एंड गैस की बात करते हैं या प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस की बात करते हैं तो दो वर्ड्स आपको बहुत कॉमन मिलेंगे, सोर्स रॉक एंड रिजर्वॉयर रॉक। और कभी आप हिस्ट्री में पढ़ें या आप थोड़ी इंफॉर्मेशन के लिए भी पढ़ें, ये ऑयल प्रोडक्ट्स जो होते हैं या गैसियस प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये आपको रिजर्वॉयर रॉक्स में मिलते हैं। That is what is said, a good reservoir, a poor reservoir. कभी ऑयल इंडस्ट्री में आप अगर फील्ड पे जाएं तो वो यही बताएंगे, दिस इज अ गुड रिजर्वायर रॉक, गुड रिजर्वायर सप्लाई, अ बैड रिजर्वायर सप्लाई. So these are important terminologies used in petroleum and gas. फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पहले तो मैं आपको एक जनरल जनरल एक बात बताऊंगा पेट्रोलियम के ऊपर, और उसके बाद मैं आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा, जिस तरह मैंने आपको कोल का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाया था। बिकॉज अगेन दिस इज माई पेपर एंड माई पेपर कैन बी कि आई कैन गिव यू पिक्टोरियल पिक्चर्स एंड आस्क यू टू लेबल ABCD, और आई कैन आस्क यू टू ड्रॉ द डायग्राम। तो इसीलिए यू शुड बी अवेयर ऑफ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस. Formation of petroleum. Petroleum is formed from organisms living in the sea. First and foremost, मैंने पहले भी आपको बताया था, मैं दोबारा emphasize कर रहा हूं, the difference between petroleum and coal, or for that matter gas and coal, because sometimes gas is linked with petroleum because the formation process is the same. The major difference is that coal is only made up of dead plant matter. जो आपका पीट था वो ट्रीज से निकला था, दैट वाज ऑल प्लांट मैटर. पेट्रोलियम जो है दैट इज अ मेड फ्रॉम बोथ द ऑर्गेनिजम्स, इट इज मेड फ्रॉम द प्लांट एज वेल एज एनिमल मैटर. अगर आप इसको डेप्थ में जाना चाहते हैं तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो ऑर्गेनिज्म जो सी में रहते थे उनकी जब डेथ हुई थी और उनके जब फॉसिल्स डिपॉजिट हुए थे तो उससे पेट्रोलियम बना था. अगर आप बात करते हैं कि कौन से एनिमल ऑर्गेनिजम्स थे, तो एनिमल ऑर्गेनिजम्स थे, दे वर कॉल्ड जू प्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन. और जो प्लांट एनिमल्स प्लांट्स थे, प्लांट्स वर कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स. तो ये दो तरह की स्पीसीज थी. इसके अलावा जो फिशेस थी, फिश की भी जो डेथ होती थी वो भी इसी डेब्री के अंदर फॉर्म होती थी. सो द मेन टू टाइप ऑफ थिंग्स आर phytoplanktons and zooplanktons. Zooplanktons being the animal remains, phytoplanktons being the plant remains. Apart from this, algae aa gayi, fishes aa gayi, that is another story. So that was a major difference between petroleum and coal. अच्छा, like coal, petroleum is also a non-renewable fossil fuel. जिस तरह कोल मिलियंस ऑफ ईयर्स के ऊपर बना है और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बनने के बाद अब वो खत्म हो रहा है. हम क्यों बोलते हैं कोल खत्म हो रहा है? हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब हम मिलियंस ऑफ ईयर्स वेट नहीं कर सकते कि दोबारा कोल फॉर्म हो तो हम आगे जाएं. इतना टाइम कौन लगाएगा? दुनिया कहां से कहां पहुंच जाएगी, या ये भी किसी को नहीं मालूम कि दुनिया होगी या नहीं होगी उसके बाद. तो इसी तरह पेट्रोलियम also takes millions of years to form, and during these millions of years it formed this substance called petroleum, and it is a non renewable resource. ये डिप्लीट बहुत तेज हो रहा है, और ये एक दफा डिप्लीट हो जाए तो आपको मिलेगा नहीं. इसीलिए इन डेवलपिंग कंट्रीज या इन अदर कंट्रीज यू आर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स फॉर योर फ्यूल.
For example, in Brazil, you are using alcohol to run your motors or your cars. You are using plants. प्लांट्स के थ्रू आप अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहे हो बेगैस से, शुगर केन से बेगैस से, और वहां से अल्कोहल प्रोड्यूस कर कर आप वो गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहे हो, जस्ट फॉर द सेक दैट ए it is cleaner than these petroleum fuels, b those are renewable fuels. Petroleum is going to deplete one day and then it's going to just finish. Now millions of years ago, देखें the word है millions of years ago, यानी पेट्रोलियम एक दिन का खेल नहीं है. Millions of years ago the organisms living in the sea died. Organisms जो रहते थे, everything has to die. These organisms died and their bodies settled at the bottom of the sea. आगे कहाँ जाएंगी? ये जाकर सी के बेड्स के अंदर सेटल हो गई. The bodies with the passage of time got covered with layers of sand and clay. जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सैंड, क्ले, सिल्ट, मड, इस तरह की चीजें कंबाइन होकर इन बॉडीज के ऊपर, इन बॉडीज को कवर करती गई. अब जाहिर सी बात है, ये बॉडीज को कवर करती जाएंगी तो क्या होता रहेगा? बॉडीज के ऊपर एक स्ट्रेस आएगा. इन अदर वर्ड्स एक प्रेशर फॉर्म होगा. जितना ज्यादा आप उसको कवर करते रहोगे उतना उसके ऊपर प्रेशर होता रहेगा. और ये जो कवरिंग थी, अगेन ये 1 साल की नहीं थी या 2 साल की नहीं थी, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स की कवरिंग थी. यानी over a period of millions of years the accumulation kept on taking place and as a result it created pressure. जितना accumulation ज्यादा होगा उतना प्रेशर होगा आपके डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर. और ये जो सारा डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जो वर्क करता है, जब आपके ऑर्गेनिजम्स मर रहे थे और नीचे सेटल हुए थे, तो पानी के अंदर एक चीज और क्या थी? एक चीज प्रेजेंट थी, बैक्टीरिया. मगर इन के ऊपर ये बैक्टीरिया इफेक्ट नहीं कर पाया. क्यों नहीं इफेक्ट कर पाया? बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, एनएरोबिक कंडीशंस थी. तो आपके जो ऑर्गेनिजम्स जो डेड हुए हैं, दीज आर नॉट फुली डीकम्पोज्ड, दे आर सेमी डीकम्पोज्ड. इसीलिए जो आपके पेट्रोलियम फ्रैक्शंस जो बन रहे हैं वो सेमी डीकम्पोज्ड मैटर से बन रहे हैं अंडर एनएरोबिक कंडीशंस, क्योंकि इतनी डेप्थ के ऊपर आपके पास ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन पानी के बाहर होता है. इसीलिए व्हेन अ फिश नीड्स टू ब्रीथ, इट comes out of water to breathe, क्योंकि ऑक्सीजन उसको वहां से मिल रहा है, ऑक्सीजन उसको पानी से नहीं मिल रहा है. या in the case of a whale, the whale has a hole over on its back just to have a breathe, a respiratory system for it. So again, like coal, 3 conditions existed: high pressure, high temperature, absence of air, यानी anaerobic condition. Petroleum formation में भी ये है, there are 3 major conditions. Number 1, high pressure. Number 2, high temperature. Number 3, absence of air, या in other words anaerobic condition. जितना ज्यादा आप डेप्थ में जाते रहोगे उतना आपका ऑक्सीजन कम होता रहेगा, उतना आपका प्रेशर बढ़ता रहेगा. एंड ऑब्वियसली इफ द प्रेशर राइजेस एंड यू आर गोइंग बीनेथ द अर्थ्स क्रस्ट, जितना आप अर्थ के क्रस्ट के नीचे जाओगे उतना आपका टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा. तो हिस्ट्री उसकी सेम है, सिमिलर प्रोसेस टू द कोल. अब क्या होता है जनाब? ड्यू टू द कंडीशंस मेंशन्ड, ये जो मैंने आपको 3 कंडीशन बताई है ना, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, इसको आप हाई भी नहीं बोल सकते, एक्सट्रीम इज अ बेटर वर्ड. एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम प्रेशर एंड द प्रेजेंस ऑफ and the absence of oxygen. Due to these conditions mentioned, ये जो आपके dead organisms है ना, जिनको हम fossils बोलते हैं, ये कन्वर्टेड होते हैं पेट्रोलियम ऑयल और नेचुरल गैस के अंदर. तो कहने का मकसद ये है कि पेट्रोलियम ऑयल और जो नेचुरल गैस है ना, वो साइड बाय साइड बनता है. इसीलिए जब हम गैस की प्रोसेस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैस, हम दोबारा ये प्रोसेस करेंगे अपने लेक्चर के अंदर, दोबारा मैं इसको बोलूँगा ताकि आपको एक रीकैप हो जाए, एक आइडिया हो जाए कि गैस भी इसी तरह बनती है. बाकी जो आपके साथ इन डीकम्पोजिशन बॉडीज के साथ जो बाकी कचरा था ना, जो अक्यूमुलेट हो रहा था, जिसको हम सैंड और क्ले बोल रहे थे, ये रॉक्स बन जाते हैं. कौन से रॉक्स बन जाते हैं? रिजर्वायर रॉक बन जाएगा, सोर्स रॉक बन जाएगा. और कभी कभी आप अगर डायग्राम्स देखेंगे तो एक चीज होती है विच इज कॉल्ड एन इम्परवियस रॉक. इम्परवियस रॉक का मतलब ये हुआ
कि यहाँ से कोई चीज पास नहीं कर पाएगी, और यही तो आप चाहते हो कि आपका जो पेट्रोलियम है वो रॉक के अंदर आकर फिक्स हो जाए, पास आउट नहीं हो। दैट इज वाई योर रिजर्वायर रॉक इज एन इम्परवियस रॉक, या इसके बाहर एक सील कैप होगी। इट इज गोइंग टू बी कैप्ड सो योर पेट्रोलियम स्टेज वेयर इट इज। बात समझ आई? सर सर इनमें जी, डिफरेंस क्या होगा, सोर्स रॉक और रिजर्वायर रॉक में डिफरेंस क्या होगा? मैंने अभी तक बात की नहीं है, इस पे आऊंगा जब मेंशन होगा। ये मुझे बताना है आपको। और कोई सवाल? सर अभी आपने कहा कि सी वाटर में जो है वो ऑक्सीजन नहीं होगी, या जैसे फिशेस वगैरह है वो बाहर आके एटमॉस्फेयर, तो सर वाटर के अंदर तो ऑक्सीजन होगी ना, वाटर में इतनी नहीं ऑक्सीजन होगी, कैसे नहीं होगी? बिल्कुल होगी वाटर, मगर इतनी नहीं होती है कि इतना वो ब्रीथ करें, वरना उनका मैकेनिज्म बना क्यों है, फिर फिश बाहर आकर ब्रीथ करती क्यों है? अगर आप थोड़ी उनकी हिस्ट्री के अंदर पढ़ें, अगर वाटर के अंदर ऑक्सीजन होती, सही है, और लेकिन बिल लेकिन पर सर वाटर के अंदर लेकिन थोड़ी ऑक्सीजन भी है, मान लिया, जी उधर सर, बैक्टीरिया भी तो एक्ट कर रहा है ना, बैक्टीरिया भी तो है लेकिन सर वाटर के अंदर, कहीं ना जो कहीं। ओशियन, जी जी सर, बोले। जी सर बोले आप। नहीं नहीं, आप बोले बोले। सर मैं कह रही थी कि जैसे सी वाटर है तो नीचे काफी ऐसे प्लांट्स भी होते हैं वाटर के अंदर, तो फिर जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो वाटर में अच्छी खासी ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट भी होती है, उसके अलावा भी ओशियन वाटर में डिजॉल्व होती है ऑक्सीजन, तो ये तो काफी सारा कंटेंट है। बिल्कुल है, मगर कोई एक लिमिटेड होगी ना। आपकी जो प्रोसेस हो रही है वो एनारोबिक में हो रही है। जब आप डिपॉजिट भी कर रहे हो, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि जितनी आपकी डेप्थ कम होती रहेगी, जितनी डेप्थ कम होगी उतना ऑक्सीजन पे क्या इफेक्ट होगा। ये तो आप सरफेस प्रोसीजर बोल रहे हो ना, जो नीचे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह एक्ट कर रहे हैं वो कहां से ऑक्सीजन लाएंगे? इतनी डेप्थ पे सही। ऑक्सीजन नहीं होगी। सही है, आप उसको सुपरफिशियल देख रहे हो कि हाँ भाई पानी है, मगर पानी के नीचे जो डेप्थ है उसकी तो बात करें, उसकी भी तो बात होगी। आधी लेकिन सर चीज वहां भी देखनी तो है। प्लांट्स, डेप्थ सर डेप्थ में ही तो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स का बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, तो काफी बिल्कुल सारे होता ऐसे है। प्लांट्स होते हैं, तो सर और डेप्थ में ऑक्सीजन होगी। सर प्लांट्स जो होते हैं वो तो मतलब अंडर द सी होते हैं, लेकिन वो जो सरफेस पे होते हैं, जो मतलब उसके बॉटम पे जो सरफेस होती है उस पे होते हैं। लेकिन जो हमारे पास जो डेथ ऑर्गेनिज्म है जहाँ पे पेट्रोलियम और हमारा फॉर्म हो रहा होता है, वो सी के जो डेप्थ होती है उसके भी कवर में होता है ना, तो वहां ऑक्सीजन का बिल्कुल पहुंचना होता है, तो वहां उनको पर नहीं होते। सेमी डीकंपोज्ड होते हैं। ठीक है सर। और ऑक्सीजन तो सही है। कंटिन्यूअसली मतलब अपर अपर लेवल पे ही फ्लो करेगा, ऊपर ही जाता जाएगा, नीचे थोड़ी जाएगा। इसीलिए जो है ना आई थिंक। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि जो नीचे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इसलिए एनारोबिक कंडीशन है। मैंने वर्ड आपको मरीन मैटर बोला है, बैक्टीरिया को ऑक्सीजन नहीं मिलता है। जो ये मैंने आपको क्या नाम है रेफरेंसेस शेयर कर रहा हूँ ना, कुछ इन रेफरेंसेस को गूगल कर लीजिएगा, कुछ और रेफरेंसेस को देख लीजिएगा। लाजमी नहीं है कि इन्हीं रेफरेंस को आप पढ़ें, इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। मैंने आपको मेन मेन चीजें बताई हैं जहां से मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, क्योंकि इस कोर्स के लिए बुक में मजा नहीं है, क्योंकि हमारा कोर्स ही चेंज हो गया है और बुक थोड़ा बाहर जा रही है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि बुक को साथ लेकर जाऊं, सोर्सेज को भी, जहां पर बुक यूज हो रही है वहां पर मैं मेंशन कर रहा हूँ। चलें। अच्छा, मैंने आपको ये कहा कि ऑयल और गैस साथ साथ मिलती है, और ये नेचुरल फिनोमिना है। जब सैंड और क्ले आपके रॉक्स बन जाए तो आप देखेंगे एज पेट्रोलियम इज लाइटर देन वाटर, इट इज फॉर्म्ड अबव द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर। वाटर की एक अंडरग्राउंड लेयर भी होगी। ऑयल की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, तो ऑयल जो होगा वो पानी के ऊपर फॉर्म होगा। और आपको क्या लगता है गैस कहाँ फॉर्म होगी? देखें, मुझे पार्टिसिपेशन भी चाहिए और सर मेरे पास सिर्फ ऑयल के 18 ऊपर मिनट है। फॉर्म होगी। ऑयल के ऊपर फॉर्म होगी, बिकॉज गैस इज ऑल्सो अ हाइड्रोकार्बन, बट अ गैस इज लाइटर देन ऑयल। दैट इज व्हाई आई से ऑयल एंड गैस आर फॉर्म टुगेदर। वी विल कम टू दिस लेटर, बट ये देखें, ऑयल आप वाटर का है, वाटर के ऊपर ऑयल है, ऑयल के ऊपर गैस है, तो गैस वुड ऑलवेज बी फॉर्म्ड ओवर द ऑयल बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस। चलें, back to the pictorial representation. Story behind सर the formation. जी,
सर जैसे आपने कहा कि ये पेट्रोलियम जो है ना, ये समंदर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड कर जाते हैं, फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो ना ये हाँ हाँ पेट्रोलियम में तब्दील हो जाते हैं। तो सर तो जो जितने भी कोल है, जो पेट्रोलियम है, जितने भी फ्यूल्स है ना, उसके लिए तो ये जरूरी है कि जो मॉइस्चर है वो नहीं होना चाहिए। तो सर अंडरग्राउंड तो मॉइस्चर तो होगा ना, जैसे समंदर है, समंदर के ऊपर पानी है, नीचे भी तो पानी होगा। तो पेट्रोलियम का एक सेकंड, बनना किस तरह मुनासिब किसने है? किसने का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए? कोल के लिए मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तो पेट्रोलियम के लिए आपको किसने का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए? तो और सर बिल फर्ज अगर आप बात भी करते हो, अब बात भी करते हो अंडर द अर्थ क्रस्ट, सही है? लेकिन सर मेरी सर उसमें जो आपने जैसे पीछे कहा ना कि जो बेस्ट फ्यूल है उसके लिए जो ना जरूरी है कि मॉइस्चर कम हो और वो क्या कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ कार्बन हो वो ज्यादा हो। तो पेट्रोलियम में तो एक बेस्ट फ्यूल है जिसमें क्वांटिटी ऑफ कार्बन ज्यादा होती है, तभी तो हमारे पास जो ना हाई हीट जनरेट होता है। देखें, पेट्रोलियम के अंदर भी बेस्ट फ्यूल होता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ पेट्रोलियम। आप दो चीजों को आपस में लिंक कर रहे हो। मैंने जो उस वक्त बोला था, मैंने कोल के लिए बोला था, आप कोल को पेट्रोलियम से लिंक कर रहे हो। कोल अपनी जगह सॉलिड फ्यूल है, पेट्रोलियम अपनी जगह लिक्विड फ्यूल है। और जहां आपके मॉइस्चर की बात रही, मॉइस्चर वैसे भी थोड़ा कम हो जाएगा पेट्रोलियम में, क्योंकि अभी मैंने आपको क्या कहा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर फाउंड अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब आप डेप्थ बढ़ाओगे अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, वहां पर पानी ज्यादा होगा कम होगा? खुद बताओ, सोचना है सर इसके लेकिन ऊपर फिर। समंदर के ऊपर सर तो अंडरग्राउंड भी तो यार पानी होता है, ये तो हमने सुन रखा है समंदर के अंदर तो नहीं बन रहा ना, समंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना। ये आप ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स देख रहे हो। आप ये समझ रहे हो कि एक दिन के अंदर हो गया तो मॉइस्चर हो गया। ऐसा नहीं होता है भाई। इसको जरा पढ़ना, इसको पहले पढ़ना, पढ़कर फिर मुझसे ये सवाल पूछना। अभी मैं आपको ऊपर से बात बता रहा हूं, पढ़कर थोड़े मुझसे पूछना तो फिर आपको समझ आएगी। चलें, स्टोरी बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। स्टेप 1 क्या है? ऑर्गेनिजम्स अंडर द सी डाई एंड देन अक्यूमुलेट। ये मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूँ। ये नीचे मैंने आपको एक वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पे जाइएगा, आपको पूरे एनिमेशन नजर आएंगे एंड यू विल गेट द एंटायर पिक्चर। सो दीज आर द प्लैंक्टन्स, जिसके अंदर आपके पास जू प्लैंक्टन्स होते हैं और फोटो प्लैंक्टन्स होते हैं, फिशेस भी होती हैं। ये डाई हुआ, अक्यूमुलेट हुआ। जब ये अक्यूमुलेट हो गए तो उसके बाद क्या होता है? accumulation with time is important under certain condition। जो डेड मेरीन एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं, इसके ऊपर सैंड, सिल्ट, मड आना लाजमी है। ये सैंड, सिल्ट, मड आकर इसके ऊपर सेटल करेगा तो प्रेशर होगा, ये अक्यूमुलेट करेगा। ये एक दिन का अक्यूमुलेशन नहीं है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का अक्यूमुलेशन है कि इट स्टार्ट्स कंपाउंडिंग ऑन टॉप ऑफ दीज थिंग्स। अगर ये आप पिक्चर देखें, पिक्चर के अंदर ये ब्लू वाटर के अंदर ये ब्राउन ब्राउन पार्टिकल्स ऊपर से आ रहे हैं। दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, मड, जो आपको पानी के अंदर मिलेंगे, पानी के साथ ये आते हैं। अब क्या होता है? स्टेप 3, जो एडेड लेयर्स होती हैं ना, थिनर लेयर्स एक्सक्यूज मी आर सर। फॉर्म। जी, अगर काम का सर क्वेश्चन है मुझे तो ये प्लीज। पूछना था जी, सर मुझे ये पूछना था कि मतलब जो पेट्रोलियम हमारा फॉर्म होता है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता है, मतलब जैसे कि फिश वगैरह हो गए, या जो हमारे प्लांट्स भी हैं, अगर प्लांट्स की बात करें तो सर उससे मतलब कैसे फॉर्म होगा? क्योंकि वो तो खुद ही ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, तो फिर तो मतलब या उनके डेड ऑर्गेनिक मैटर से फॉर्म होगा। अगेन इफ यू रीड दिस यू विल फाइंड इट आउट। फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, दे कम अंडर द प्लांट प्रोसेस। तो उससे भी तो मतलब फॉर्म होता है ना, कार्बन तो फॉर्म होगा ना, उसका हाइड्रोकार्बन तो फॉर्म होंगे। ओके सर। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ। अगर सिर्फ प्लांट की बात करो तो कोल होगा, दोनों की बात करो तो पेट्रोलियम भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू फाइंड इन योर सोर्स रॉक एंड योर रिजर्वायर। उसके ऊपर मैं आता हूं अभी बात। With the added layer, thinner layers are formed as decomposition takes place। जैसे आपकी layers form हो रही हैं तो आपकी जो layers of sand और silt हैं वो बढ़ती रहेंगी आपके सोर्स रॉक के, आपके इसके ऊपर जो डिपोजिशंस हैं। चलें, वर्ड है पार्शली डीकम्पोज लेयर। मैं बार बार पार्शली डीकम्पोज बोले जा रहा हूं, उसकी वजह यह है कि ये एनएरोबिक कंडीशंस के अंदर होती है। तो जो आपका डीकॉम्पोजिशन है वो फुली डीकॉम्पोजिशन नहीं है। पार्शली डीकम्पोज लेयर्स
प्रेशर विल इंक्रीज। जितना आप फोर्स डालते रहोगे आपका प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि आपकी डेप्थ भी इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे आपकी डेप्थ इंक्रीज होगी आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर आप 6 फुट के ऊपर खड़े हो और नीचे बिलो द अर्थ आप 20 फुट पे जाओ तो डेफिनेटली वहां पर टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर एट द टॉप। So, like we talked in the coal production, same way in petroleum production, both your temperature and your pressure is going to increase. Step 5, formation of shale. ये जो आपका sand है ना, silt, यहाँ से नीचे से एक फोर्स ऊपर लगती है और ये जो फोर्स होती है, your silt is converted into shale. Shale जो होता है वो एक रॉक फॉर्म करेगा। जो आपका सोर्स रॉक जो बोलते हैं वो असल में शेल होता है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है ये आपको इस लेक्चर में मालूम पड़ जाएगा इस वेबसाइट को खोलकर कि व्हाट एग्जैक्टली इज शेल। आई डू नॉट वांट टू गो इन शेल बिकॉज देन वी आर गोइंग टू ड्रिफ्ट अवे टू पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, बट आप ये समझ लें कि शेल इज अ टाइप ऑफ रॉक और इस रॉक में से आपका जो पेट्रोलियम है वो पास आउट होगा। फाइनली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, द माइग्रेशन ऑफ ऑयल टू द रिजर्वायर रॉक। आपका जो शेल है मैंने आपको बोला वो सोर्स रॉक है, जिधर आपका रिजर्वायर रॉक है वहां पर माइग्रेशन ऑफ ऑयल होगा। इससे चले अब मैंने ये बात कर ली है तो वी कैन गो ऑन दिस स्लाइड फर्स्ट। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द सोर्स रॉक, द सोर्स रॉक इज द रॉक वेयर द एक्चुअल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। They, after the deposition, when the petroleum products are formed, that is called the source rock because that is the origination of the petroleum products. The term source is telling you that source of petroleum formation. A common example of source rock is shale. तो जो हमने ये shale की बात की थी that is the source rock, और पहले भी स्लाइड के अंदर मैंने ये बोला था silt and mud they become rocks, तो उनमें से जो एक रॉक है वो सोर्स रॉक है। दूसरी बात यहां पर आती है व्हाट इज द रिजर्वायर रॉक। रिजर्वायर रॉक इज द रॉक वेयर द पेट्रोलियम विल एक्चुअली बी go and displaced and stay there, it will be trapped there। तो रिजर्वायर रॉक जो होता है वो एक इम्परवियस रॉक होता है, यानी इसके बाहर पेट्रोलियम नहीं आ सकता। पेट्रोलियम इस रिजर्वायर रॉक के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहेगा जब तक उसको एक्सट्रैक्ट किया नहीं जाएगा या कंपनी ने उसको फाइंड आउट नहीं किया, ड्रिलिंग नहीं होगी, जब तक वो उस रिजर्वायर रॉक में रहेगा। और ये मुझे कैसे मालूम है कि ये रिजर्वायर रॉक जो है ये इम्परवियस है या इसके बाहर पेट्रोलियम नहीं आ सकता? इसके बाहर एक कैप रॉक है। कैप रॉक का मतलब यहाँ पर एक सील लगी हुई है। इन सर्टेन प्लेसेस इट इज कॉल्ड कैप रॉक, इन सर्टेन प्लेसेस इट इज कॉल्ड कैप सील। ये सील का फंक्शन क्या है? ये सील का फंक्शन ये है कि जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो इस रिजर्वायर रॉक के बाहर नहीं आ सकते। ये मैंने आपको 3 टर्मिनोलॉजीज बताई। एक टर्मिनोलॉजी सोर्स रॉक है, दूसरी टर्मिनोलॉजी रिजर्वायर रॉक है, तीसरी टर्मिनोलॉजी कैप रॉक है, चौथी टर्मिनोलॉजी माइग्रेशन। माइग्रेशन is the transport of petroleum from the source rock to the reservoir rock। तो ये जो आपका ऑयल जो बना है ये माइग्रेट होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल कलेक्शन पॉइंट के ऊपर। अब ये जो चीज हो रही है फॉर्मेशन ऑफ शेल, यहाँ पर शेल फॉर्म हो रहा है, पर ये जो शेल जो नीचे फॉर्म हो रहा है, ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है कि नीचे फॉर्म हुआ है, ये माइग्रेट होकर यहाँ पर इसने एक ब्लैक लाइन बना दी है और नीचे अब देखें नीचे कोई भी नहीं रहा है, नीचे सिर्फ रॉक है, शेल की एक लेयर है, नीचे कोई ब्लैक कंपोनेंट नहीं है, सारा सोर्स रॉक से रिजर्वायर रॉक में चला गया है। तो अगर मैं आपको ये डायग्राम दूं और इसमें पूछूं कि सोर्स रॉक को लेबल करो, जो सबसे नीचे ब्राउन है पार्टिकल्स की ये सोर्स रॉक है, वाटर जो है वो ब्लू की लाइन है, जो ऑयल जो है वो ब्लैक की लाइन है, ग्रे जो है दैट इज गैस। ये किस चीज के अंदर है? ये है एक रिजर्वायर रॉक के अंदर। सो दिस इज द वे हाउ यू रिलेट द नेक्स्ट डायग्राम इनटू द प्रीवियस डायग्राम। अब एक टर्म मैंने आपको माइग्रेशन बताई, दूसरी टर्म आपकी होती है एंटीक्लाइन। एंटीक्लाइन जो होता है वो आपके कैप रॉक के अंदर होता है। एंटीक्लाइन का फंक्शन क्या होता है, या जिसको हम आर्च डोम भी बोलते हैं, ये डोम है
मस्जिद का जैसे डोम होता है ये इस शेप के अंदर होता है। ये जो डोम का काम है ये इंश्योर ये करता है कि आपका जो पेट्रोलियम है वो रिजर्वायर रॉक के अंदर ट्रैप्ड रहे, TRAPPED, ट्रैप्ड, यानी बाहर नहीं निकल सकता। तो एक और टर्म जो आपकी पेट्रोलियम के साथ आती है वो ट्रैपिंग कहलाती है। अ ट्रैप इज अ जियोलॉजिकल ट्रैप व्हिच प्रिवेंट्स द पेट्रोलियम टू एस्केप। ये कुछ मेन चीजें थी, एंटीक्लाइन, माइग्रेशन, सोर्स रॉक, रिजर्वायर रॉक, कैप रॉक। Any of these can be asked. I have not mentioned the definition in the slides, but I've told you the explanation. उसके बाद आप ये देखें, आपका जो ऑयल होता है वो आता है आपकी वाटर की लेयर के ऊपर बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस। आपका जो गैस होती है दैट कम्स ओवर द ऑयल बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस। तो इसी प्रोसेस के अंदर आपको ऑयल भी मिल गया, इसी प्रोसेस के अंदर आपको गैस भी मिल गई। तो गैस और ऑयल का प्रोसेस फॉर्मेशन का सिमिलर है। गैस के लिए उसके अलग रिजर्वायर रॉक्स होते हैं, दे कैन इवन बी इन द सेम रिजर्वायर रॉक, ऑयल और गैस, बट गैस पहले निकलेगी, ऑयल बाद में निकलेगा। उनका एक्सप्लोरेशन करने का तरीका सेपरेट है। सो दिस वाज द जनरल कंडीशंस ऑफ पेट्रोलियम एंड दिस इज अदर टाइप ऑफ डायग्राम। सोर्स रॉक आपका होता है, ऑयल आपकी यहाँ पर है। फॉल्ट क्या है? फॉल्ट जियोलॉजिकल फॉल्ट होती है जो आपका एक फ्रैक्चर जिसको बोलते हैं, आपके अर्थ के क्रस्ट में फ्रैक्चर हो जाता है, फ्रैक्चर की वजह से आपका ये माइग्रेशन होगा, शेल ट्रांसपोर्ट वगैरह होगा ये सब फ्रैक्चर की वजह से हो रहा है। बाकी प्रोसेस वही है। रिजर्वायर रॉक के अंदर आपका ऑयल होगा और ऑयल, वाटर, गैस जो भी है वो रिजर्वायर रॉक के ऊपर होगा और वो सील होगा कैप रॉक से। कैप रॉक या कैप सील। कैप रॉक का फंक्शन क्या है कि जो आपका रिजर्वायर रॉक के अंदर रिजर्वायर है ना, ये बाहर एस्केप नहीं करे, इसीलिए हम बार बार ऑयल और गैस को ऑयल रिजर्वायर बोलते हैं, गैस रिजर्वायर बोलते हैं। और ये जब तक अंदर रहेगी उस रॉक के अंदर, जब तक इसको एक्सट्रैक्ट किया नहीं जाए। ये जो ऊपर आपको मशीन ऑफशोर दिख रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, ये जो आप नीचे ऑयल में जा रहे हैं, जब तक ये एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाएगा ये यहीं पर रहेगी। एंड अ गुड रिजर्वायर रॉक इज अ रॉक which keeps the petroleum, which is enriched in petroleum products and keeps that in itself without letting them escape. Classification of liquid fuel. जब आप लिक्विड फ्यूल की बात करते हैं तो फिर पेट्रोलियम क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। एक होता है पैराफिन बेस्ड ऑयल, इसके अंदर मेजॉरिटी एन एल्केन्स की होती है। दूसरा आपका एस्फॉल्ट बेस्ड ऑयल होता है, इसके अंदर आपके एरोमेटिक रिंग्स आते हैं और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स आते हैं। एरोमेटिक रिंग्स का मतलब बेंजीन, टाउलिन, ज़ाइलीन, इस तरह की रिंग्स आती हैं। तीसरा होता है मिक्स बेस्ड ऑयल। द डिफरेंस इज दैट मिक्स बेस्ड ऑयल के अंदर देयर इज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एरोमेटिक्स एंड नेफ्थीन्स, यानी पहली वाली के अंदर सिर्फ एन एल्केन है, दूसरी वाली के अंदर थोड़े से एरोमेटिक्स हैं और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, और तीसरे वाले के अंदर बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं और नेफ्थीन्स हैं। इसीलिए जो तीसरा वाला है उसको आपको प्यूरिफाई भी करना पड़ेगा, बिकॉज द ग्रेटर द नंबर ऑफ एरोमेटिक्स, द मोर सल्फर कंटेंट एंड लेड एंड materials are going to be present. So that is the third criteria. This is a diagram of a petroleum refinery. ये जो आप पढ़ेंगे ना, ये आप TRE के अंदर पढ़ेंगे, पर इसके अंदर मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पेट्रोलियम रिफाइनरी इतना छोटा चीज नहीं है। पेट्रोलियम रिफाइनरी में आपने ऑयल एक्सट्रैक्ट तो कर लिया, ऑयल, आई फॉलो माय माउस, ऑयल, you have extracted the oil. After extracting the oil, you have a fractionating tower. फ्रैक्शनेटिंग टावर का काम क्या होता है, ये आपने मास ट्रांसफर के अंदर पढ़ा हुआ है कि फ्रैक्शनेटिंग टावर का फंक्शन क्या होता है। फ्रैक्शनेटिंग टावर जो आपके ऑयल होते हैं उसको ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट करता है। जब एक दफा आपका ऑयल सेपरेट हो गया तो उसके बाद उसके प्रोसीजर होते हैं। कौन सी प्रोसीजर्स हैं? रिफाइनरी प्रोसेसेस। एक होती है क्रैकिंग, एक होती है विस ब्रेकिंग। There are multiple processes. These are all going to be termed in petroleum refinery. Khair, I just wanted to show you what happens to the petroleum products once they are extracted. Refining in petroleum refining क्या होती है? It is the process to remove
impurities and separate out the oil in various fractions based on boiling points. API gravity is known as refining of petroleum. यानी जब आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को उनके बेसिस पे कर दोगे, बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर सेपरेट कर दोगे कि आपके पास सेपरेट फ्रैक्शन आ गए, डीजल अलग आ गया, केरोसिन अलग आ गया, पेट्रोल अलग आ गया, ये बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आप रिलेट कर रहे हो। अगर आप लोग को मालूम है एपीआई ग्रेविटी क्या होती है, एपीआई ग्रेविटी आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में यकीनन पढ़ी होगी, मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि मैंने उसके अंदर देखा था। तो एपीआई ग्रेविटी इज नथिंग बट 141.5 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस 131.5। एपीआई ग्रेविटी क्या करती है? एपीआई ग्रेविटी इज जस्ट द रिवर्स ऑफ डेंसिटी, लिक्विड्स डेंसिटी रिलेटिव टू वाटर, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी को रिलेट करती है। इन अदर वर्ड्स, जब आपको फ्रैक्शनेशन करना है तो दो चीजें देखी जाती हैं, या तो बॉइलिंग पॉइंट देखा जाता है या तो एपीआई ग्रेविटी देखी जाती है। अगर बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो सबसे पहले बाहर निकल आएगा, यानी सबसे पहले आपकी लाइट गैसेस निकल आएंगी, लाइट गैसेस के बाद ब्यूटेन वगैरह निकल आएगा, ब्यूटेन के बाद गैसोलीन आएगा, गैसोलीन के बाद नेफ्था आएगा, नेफ्था के बाद डीजल आएगा, डीजल के बाद केरोसिन आएगा, एंड सो फोर्थ। द हेवियर कंपोनेंट वुड रिमेन लास्ट। एपीआई ग्रेविटी क्या होती है? एपीआई ग्रेविटी इसका उल्टा होता है, जितना ज्यादा आपका एपीआई ग्रेविटी हो उतना कम आपका बॉइलिंग पॉइंट होगा। यानी अगर मेरी एपीआई ग्रेविटी 60 है तो इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, तो जिसकी एपीआई ग्रेविटी ज्यादा होगी सबसे पहले वो बाहर निकलेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर। जिसकी एपीआई ग्रेविटी सबसे कम होगी, 10 होगी, 12 होगी, वो हैवी ऑयल्स हैं, वो वहीं पर नीचे रहेंगे unless you do a further process on it. I think the time is up. I am just doing one last slide and then I will continue from here. Important refinery processes. My last slide is that what I just told you, that fractionation is the basis of boiling point or API gravity. फ्रैक्शनेटिंग टावर आपके पास होता है, आप इसका डिस्टिलेशन करते हो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में। प्लीज लुक एट दिस, अनकंडीशनड गैसेस, दीज आर द लाइटेस्ट, दे विल गो अप फर्स्ट, लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। पेट्रोलियम एथर नेक्स्ट, गैसोलीन इज हेवियर, it will be the third component to go out, then naphtha, kerosene, diesel oil, lubricating heavy oil. I will not tell you this phenomena because A, it is going to come under PRE, and B, you have just done mass transfer 2 months ago, और even एग्जाम को भी हुए हुए 1 महीना नहीं हुआ है, और आप लोग मतलब चैंपियंस हैं मास ट्रांसफर के अंदर, आप लोग को मालूम है कि मास ट्रांसफर किस तरह किया जाता है, तो पूरा डिस्टिलेशन का एक टॉपिक आपने किया हुआ है, तो आप लोग को अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे बेहतर ये नॉलेज होगी कि मास ट्रांसफर ये डिस्टिलेशन क्या किया जाता है। मेरा आखिरी सवाल है आप लोग से कि कोई भी इसको बता दे, बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह कल पूछेंगे और इसको कल कवर करेंगे। जो आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल है, कंपेयर दैट टू नेफ्था, will a lubricating oil have a higher API or a lower API compared to naphtha? Lower API. लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो API है वो कम होगा मगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इसलिए बाद में निकलेगा। सिंपल रूल ऑफ द थंब, API इज इनवर्सली रिलेटेड टू द बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका API ज्यादा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका API कम। So I would like to stop here, and I really wanted to finish this topic today, but circumstances did not let us.